So let us see 10th question now. So 10th question is, a man walks along a straight road and observes that the greatest angle subtended by two objects is alpha. From the point where this greatest angle is subtended, he walks a distance c towards the road and finds that the two objects are now in a straight line, which makes an angle beta with the road. We have to prove that the distance between the objects is c sin alpha sin beta sec alpha plus beta upon sec alpha minus beta by 2. Okay, so let us see this question. 10th one seems to be an interesting one. A man walks along a straight road and observes the greatest angle subtended by two objects is alpha. Okay, so let us say this is our straight road. Okay, and a man is walking along this straight road. Then two objects subtend, the greatest angle subtended by two objects is alpha. So let us say we have one object over here P and next object over here Q, and ये दोनों greatest angle let us say इस point पे subtend करते हैं. Okay, and let us say this point is A and this angle is alpha. Okay, now from the way this greatest angle is subtended, he walks a distance c towards the road. Which distance c towards the road travel करता है, such that he finds that two objects are now in a straight line, which makes an angle beta. So basically वो travel करते करते किसी एक point B पे पहुंच जाता है, and वहां पे what does he observes is the two objects are now in straight line for him, and this straight line is making an angle of beta with the surface. Okay, clear till this point? What we have to find out is we have to find the distance between the objects. So हमें इन objects के बीच का distance पता करना है. Basically हमें PQ पता करना है, and we know this distance AB वो है A exactly, no C, he walks a distance C, so this distance is C. So इस डेटा को यूज करके हमें PQ पता करना है. Now one very important line in this question, it is C. He finds that the greatest angle subtended by two objects is alpha. Okay, so this is the greatest angle subtended by two objects. Now my question is, what is the condition for two objects to subtend greatest angle at some point? या फिर दो objects किस point पर greatest angle subtend करते हैं, आप मुझे बताइए. What is the condition? किस कंडीशन पे दो ऑब्जेक्ट्स किसी भी पॉइंट पर ग्रेटेस्ट एंगल सबटेंड करेंगे? जल्दी से बताइए, कुछ सोचिए तो सही एटलीस्ट. व्हाट इज द कंडीशन और हाउ टू आइडेंटिफाई दैट पॉइंट जहां पर दो ऑब्जेक्ट्स ग्रेटेस्ट एंगल सबटेंड करते हैं? जल्दी से सोच के बताइए. या फिर लेट अस डू वन थिंग, आई विल गिव यू द रिजल्ट और आप मुझे प्रूफ करके बताइए कि जो मैं कह रही हूं सही है कि नहीं. मैं कहती हूं कि ये तीन पॉइंट्स A, P एंड Q कॉन्साइक्लिक होंगे. PQ ग्रेटेस्ट एंगल उस पॉइंट पे सबटेंड करेगा जो उस सर्कल पे लाई करेगा. ओके, देखिए, सो बेसिकली मैं कह रही हूं कि ये A, P और Q are going to be concyclic. They are going to lie on a circle. Now I want you guys to prove me this result. सोचिए, apply some logics and you will easily get कि why I am telling that this is going to be the greatest point. किस कारण से मैं ये बात कह रही हूं. Okay, so what I am telling is for PQ to subtend greatest angle at A, these 3 points have to be collinear. A, P and Q have to be not collinear. A, P and Q have to be concyclic. This is what I am telling right now. Am I correct?
इस चीज को प्रूव करिए। देखिए मैं कहती हूं लेट अस से इट सबटेंड्स दिस एंगल एट सम पॉइंट a डैश हुए है। ओके, मैं कहती हूं कि a डैश पे ये ग्रेटेस्ट एंगल सबटेंड करता है। ओके, ठीक है, मैं ऐसा कहती हूं। ओके, और a डैश के करस्पॉन्डिंग लेट मी ड्रॉ इट दिस वे। मैं कहती हूं ये किसी पॉइंट a डैश पे ग्रेटेस्ट एंगल सबटेंड करता है, नॉट a, सम अदर पॉइंट a डैश। अब इसे ज्वाइन कर दीजिए। a डैश से जो हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की वो इस सर्कल को लेट अस से किसी पॉइंट a डबल डैश पे इंटरसेक्ट करती है। ओके, सो लेट मी टेक सम अदर कलर चॉक। ओके ओके, सो a डैश से जो हमने लाइन ड्रॉ की वो हमारे सर्कल को a डबल डैश पे इंटरसेक्ट करती है। नाउ लेट मी ज्वाइन PA double dash and Q. Okay, and let me join PA dash Q. Okay, clear? Now it is very apparent and it is very clear that PA dash Q is less than PA double dash Q. करेक्ट? क्लियर है ये बात? PA dash Q would be less than P double dash A Q. जब मैं ये कह रही हूं तो क्या मैं सही कह रही हूं? इसे यहां पर देखिए और क्लियर हो जाएगा। Let us say we have a circle. Okay? सर्कल पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए। ओके, अब एक एंगल ये लीजिए और एक एंगल ये लीजिए। ठीक है, लेट अस से ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, ये है A1 और ये है A2। सो दिस एंगल लेट अस से इज 1 and this say let us say is 2. So very apparently and very clearly I know 1 is greater than 2. एंगल 1 जो है वो एंगल 2 से बड़ा है। सही है कि नहीं? So the same concept I have written PA double dash Q would be greater than PA dash Q. ये होगा हमारा एंगल 1 और ये होगा हमारा एंगल 2. It is greater than PA double dash Q and we know PA double dash Q is equals to PAQ because chord of the circle subtend equal angle at all the points on circumference, which implies PA dash Q will be always less than PAQ. इसी तरीके से आप कोई भी और arbitrary point ले लीजिएगा, you will find out that PAQ will be always greater than that the other angle subtended, which means A पर ही greatest angle subtend होगा तभी जब ये तीनों पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक होंगे, एक ही सर्कल पे लाई करेंगे। क्लियर है ये बात? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक बार और समझाऊं, फिर से समझाऊं? देखिए देखिए, व्हाट वी हैव टू फिगर आउट इज हमारे पास दो पॉइंट्स PQ है, हमें पता करना है कि एक स्ट्रेट लाइन पर ये दो पॉइंट्स कब इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। दिस इज व्हाट वी हैव टू फिगर आउट बेसिकली। अब हम ये बात समझते हैं कि यहाँ हम जितना दूर जाते जाएंगे इतना ही एंगल छोटा होता जाएगा। सो PQ के कहीं आसपास ही एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे मैक्सिमम एंगल मिलेगा। अब मैंने क्या किया, मैंने आपको पहले ही कह दिया ये कंडीशन तब लाई करती है जब PQ और वो पॉइंट A किसी एक सर्कल पे लाई करें। जब ये तीनों पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक होंगे तभी जाकर PQ ग्रेटेस्ट एंगल सबटेंड करेगा। क्लियर था यहां तक? अब इसको प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया, लेट अस टेक रिवर्स साइकोलॉजी। कॉन्वर्स तरीके से प्रूव करते हैं। मैं कहती हूं कि मैं मानती हूं कि कोई एक पॉइंट A1 है जहां पर PQ ग्रेटेस्ट एंगल सबटेंड करता है, तो हमने माना वो पॉइंट है A1। ठीक है,
अब मैंने क्या किया, A1 से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की जो सर्कल को इंटरसेक्ट करती है A2 पे. लेट अस से एंगल PA1Q इज 1 एंड PA2Q इज 2. अब हम ये बात तो बहुत क्लियरली समझते हैं कि एंगल 2 एंगल 1 से बड़ा होने वाला है. हम उस पॉइंट के, हम इस लाइन PQ के जितना पास आते जाएंगे हमारा एंगल उतना बढ़ता जाएगा. ये बात तो हम समझते ही हैं, है ना, कि हम PQ के जितना नजदीक आएंगे उतना एंगल का मेजरमेंट बढ़ेगा. सो एंगल 2 एंगल 1 से बड़ा होगा और एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 1. और लेट मी राइट दिस वे, PA2Q is greater than PA1Q. But I very well know PA2Q PAQ के बराबर होगा क्योंकि ये दोनों PQ कॉर्ड के द्वारा इस सर्कल पे सबटेंड किए हुए एंगल्स है. मतलब एंगल PAQ is greater than PA1Q. करेक्ट. PAQ PA1Q से बड़ा है. तो हमने प्रूव कर दिया कि PAQ किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट A1 पे लिए गए एंगल से बड़ा होगा, विच मीन्स PAQ इज गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड PQ. P और Q को अगर ग्रेटेस्ट एंगल सबटेंड करना है तो वो उसी पॉइंट पे करेंगे जो इन दोनों के साथ कॉन्साइक्लिक होगा. क्लियर था ये कंडीशन यहां तक? कोई भी डाउट? सो वी नो that A would be lying on the circle passing through P and Q. So A, P and Q are going to be concyclic points. Okay. So I think we are satisfied with this condition over here. So can I erase this now? इन सबको erase कर दूं? I hope my point is clear now. Okay, so just draw this triangle circle और ये है हमारा PQ. ओके, अब मुझे आपसे चाहिए, आप मुझे अब बताइए कि PQ की वैल्यू क्या होगी. Now this question is gonna be very easy. बहुत difficult नहीं होने वाला है. And what we already know is that this angle over here is alpha. Based upon this data, I want you guys to analyze and tell me what is the value of PQ now. बताइए क्या लॉजिक यूज करें जिससे हम PQ की वैल्यू निकाल सकते हैं. सोचिए. Now this question is not that difficult at all. It's an easy one now. This point over here is P. So अब आप मुझे बताइए क्या लॉजिक हमें यूज करना चाहिए इस कंडीशन में. ओके, अब आप मुझे बताइए that what should be our approach to solve this question. किस अप्रोच को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. देखिए, एक चीज तो हमें क्लियरली समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे साइन लॉ यूज करना ही पड़ेगा. क्यों? क्योंकि हमारे पास दो एंगल्स दिए हुए हैं. वी नो द थर्ड एंगल एंड वी नो वन साइड, दैट इज दिस साइड C. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी गट फीलिंग आ रही है कि साइन लॉ वुड बी अ बेटर वे टू यूज हियर. बट उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ और एंगल्स और रिलेशन भी पता करने पड़ेंगे. सी, वन थिंग दैट वी हैवंट स्टिल यूज्ड इज और वी हैवंट मेंशन्ड इज, क्योंकि ये सर्कल है और ये AQ इस सर्कल की कॉर्ड है और AB टैंजेंट है. सो ये कॉर्ड AQ अगर टैंजेंट के साथ थीटा एंगल बनाएगी लेटस से, तो ये यही एंगल यहाँ पर सर्कल की सरकमफरेंस पर बनाएगी. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सर्कल कि कॉर्ड जो एंगल टैंजेंट के साथ बनाती है वही एंगल वो उसकी सरकमफरेंस पर सबटेंड करती है. क्लियर है? आई थिंक यू गाइस आर नॉट एबल टू रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी. इसका प्रूफ बताऊं? बहुत ही आसान है. लेट अस से हमारे सर्कल का सेंटर है O. लेट अस जॉइन OA एंड OQ. ठीक है, ये एंगल हो जाएगा OAB 90, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा.
ये एंगल भी होगा 90 माइनस थीटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है, ये एंगल होगा 2 थीटा, विच मीन्स दिस एंगल इज गोइंग टू बी थीटा, करेक्ट। सो नाउ इज दिस प्रॉपर्टी क्लियर, प्रूफ भी क्लियर है, तो बिल्कुल इस प्रॉपर्टी को मत भूलिएगा, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, आई एम नॉट गोना मेंशन इट नेक्स्ट टाइम, ओके। सो जो एंगल कॉर्ड टैंजेंट के साथ बनाती है वही एंगल वो सर्कमफरेंस में सबटेंड करती है। नाउ वी हैव गॉट सम रिलेशंस, सो लेट अस अप्लाई साइन लॉ। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल APQ में साइन लॉ लगाते हैं, पहले APQ में, ओके। इन ट्रायंगल APQ लेट अस अप्लाई साइन लॉ। सो कैन आई राइट बाय साइन लॉ PQ upon AQ will be PQ upon AQ is going to be equals to PQ के opposite है sin alpha and AQ के opposite the angle we have is sin theta, okay। So PQ upon AQ is going to be equals to PQ के opposite sin alpha upon sin theta, and in this triangle ABQ let us apply sin law in triangle ABQ. ABQ में we can write AQ upon C, AB is C, तो मैं इसे डायरेक्टली लिख दूं C, स्मॉल c, so AQ upon AB, AQ के ऑपोजिट एंगल है sin बीटा और AB के ऑपोजिट एंगल है sin 180 माइनस बीटा प्लस थीटा, perfect, clear till this point? So from here if you multiply these two, so I'll get PQ upon C will be sin alpha upon sin theta into sin beta upon sin beta plus theta, correct? Now we have to find this angle theta क्योंकि theta unknown है। अब थीटा फाइंड आउट करने के लिए क्या करें, लेट अस डू वन थिंग, लेट अस अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी इन दिस ट्रायंगल PAB। PAB में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो मिलेगा बीटा प्लस थीटा प्लस अल्फा प्लस थीटा विल बी 180 डिग्रीज, करेक्ट। सो यहां से हमें क्या मिलेगा, विल गेट ट्वाइस थीटा इज 180 माइनस beta plus alpha, or I can write theta would be 90 minus alpha plus beta by 2, correct? कोई डाउट यहाँ तक? So let us put the value of theta here. So I get PQ as C sin alpha sin beta, okay। अब थीटा की जगह में रखूंगी 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, so this will be equal to cos 90 minus alpha sin 90 minus alpha plus beta by 2 would be cos alpha plus beta by 2, और उससे मैं लिख सकती हूँ sec alpha plus beta by 2, so this would be sec alpha plus beta by 2, ठीक है। दूसरा मिलेगा 90 minus alpha plus beta by 2 plus बीटा, so what will that be equals to, देखिए बीटा प्लस थीटा is beta plus 90 minus alpha plus beta by 2, correct? So this is going to be alpha minus beta by 90 minus alpha minus beta by 2, correct? देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 बीटा minus alpha plus beta, correct ना? What is going to be this, 90, let us put 90 aside, this is going to be plus twice beta minus alpha plus minus beta by 2, this would be 90 minus alpha minus beta by 2, so I can write this guy over here as sin 90 minus alpha minus beta by 2, and which would be sec alpha minus beta by 2, clear है?
So what I get PQ is sine is C, sin alpha sin beta sec alpha plus beta by 2 sec alpha minus beta by 2, और यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था कि ये PQ की वैल्यू है। आई होप ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है। क्वेश्चन काफी अच्छा था because it involved two very good concepts. The first important concept was कि PQ किस पॉइंट A पर ग्रेटेस्ट एंगल सबटेंड करेगा, यही इस क्वेश्चन का क्रक्स था। इट्स रियली टफ टू एनालाइज, मतलब अगर आपको नहीं पता हो पहले से या यू डोंट अप्लाई रियल लॉजिक, इट इज डिफिकल्ट टू एनालाइज कि ये पॉइंट वहां होगा जहां पे ये तीनों सर्कल्स कॉन्साइक्लिक होंगे। क्लियर है क्या किस तरीके से हमने ये प्रूव किया? एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग वाज टू यूज दिस प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल्स। सो बेसिकली ये था तो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का क्वेश्चन, लेकिन इसमें काफी इंपॉर्टेंट पार्ट सर्कल का इन्वॉल्व था। एंड इन फैक्ट मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद पहले नहीं बताया, बट नाउ लाइक दिस इज वन अमंग द क्वेश्चंस जो पहले रूट की एग्जामिनेशन में भी आया है और एक बार आईआईटी के पेपर्स में भी आया है। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, आई मीन सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? शैल वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? सो व्हाट आई वांट कि एक बार आप सभी इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देख लीजिए, नोट द सोल्यूशन कंप्लीटली, और कोई भी डाउट हो तो मुझसे बिल्कुल पूछ लीजिए। आई मीन इट्स अ गुड क्वेश्चन, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कंप्लीटली। Okay, so note this down and then let's solve 11th question. Okay.